سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کرائے جائیں۔ حکومت سپریم کورٹ پہنچ گئی، صدارتی ریفرنس دائر کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، ملازمین کی تنخواہیں ناکافی ہیں، مگر جب تک آمدنی نہیں بڑھتی قوم صبر کرے۔ نیپرا نے عوام پر بجلی بم گرانے کے لیے درخواست دے دی۔ اپوزیشن استعفے دے یا ڈرامہ بند کرے، نیب میں بہتری کی گنجائش مگر سودے بازی نہیں ہوگی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سینٹ الیکشن سے قبل استعفے نہ دینے کا مشورہ دے دیا۔ اگر حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی تو شیروانی پہننے کی کیا جلدی تھی؟ مریم نواز کے حکومت پر تنزیہ وار۔ پنجاب اسمبلی میں ملتان سے تعلق رکھنے والے سابق رکن پارلیمنٹ سید ناظم حسین شاہ کے انتقال پر متفقہ تعزیتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ ملتان گل داؤدی کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ جاتے ہوئے دسمبر کی سرد رات کو گرین ایونٹ گروپ نے مکس نیوز اور بدلتا زمانہ کے اشتراک سے شب آتش سجا دیا۔ خوبصورت غزلوں، قوالی، عارفانہ کلام سے حاضرین محفل پر سحر طاری۔ لال شہباز قلندر کے کلام پر سامعین دھمال ڈالتے رہے۔ خوابوں کے شوقین افراد کے لیے خصوصی باربیکیو کا اہتمام۔ ضلعی صدر فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان میاں جاوید قریشی اور گرین ایونٹ گروپ کے عبدالباسط راؤ کہتے ہیں تقریب کے انعقاد میں تعاون پر چیف ایگزیکٹو آفیسر مکس نیوز و ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس کے مشکور ہیں۔ کھانے وال میں سردیوں کی اسپیشل سوغات، 16 اقسام کے حلوہ جات تیار ہونے لگے۔ اچ شریف موٹر وے پر تیز رفتار بس کی ٹکر سے ڈالا الٹ گیا، ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی۔ لیا میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، قانون با اثر افراد کے سامنے بے بس ہو گیا، 3 روز بعد بھی مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ لودھراں جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف رانا ارسلان کا صحافیوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز، میں ہوں معاذ بن شفیق اور میں ہوں ناصر عباس۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی منظوری کے بعد سینٹ الیکشن شو آف ہینڈز کے ذریعے کرانے کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی تجویز پر آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ بھجوانے کی منظوری دے دی۔ ریفرنس میں آئین میں ترمیم کیے بغیر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 122(6) میں ترمیم پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں خفیہ بیلٹنگ سے ارکان کی خرید و فروخت میں کالا دھن استعمال ہوتا ہے، جس سے سینٹ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت ہونے سے انتخابی عمل میں شفافیت آئے گی۔ اہم آئینی نکتے پر سپریم کورٹ اپنی رائے دے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور تنخواہ دار طبقے کو ملنے والی تنخواہ کافی نہیں۔ اسلام آباد پولیس لائن میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جس کی مال اور جان کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ فوج سرحدوں پر قوم کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور پولیس ملک میں عوام کا تحفظ، لیکن پولیس کا آج تک وہ مقام نہیں بنا جس کی وہ مستحق ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس سمیت کسی بھی تنخواہ دار طبقے کو ملنے والی تنخواہ کافی نہیں۔ وہ سیاستدان جن کو اللہ نے بہت موقع دیا اور وہ ملک کے سربراہ بن گئے، ان کے سامنے بھی 2 راستے تھے، وہ حلال کما سکتے تھے لیکن وہ اس راستے پر چل پڑے کہ آج عبرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس کی تنخواہ پنجاب پولیس کے برابر کرنے کے لیے حفیظ شیخ سے بات کروں گا۔ جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی ساری قوم کو صبر کرنا پڑے گا۔ آگے حالات بہتر نظام لا رہے ہیں، آمدنی بڑھے گی تو تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو وہی
ज़हन में डाल लें कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन उनका मसला क्या है? उनको इस वक्त एतमाद नहीं है कि हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। और इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इस पाकिस्तान को ऊपर उठाने में। मैं आपको आज सबसे पहले तो ये कहता हूं कि जो आपकी तनख्वाहें पंजाब से नीची हैं, इंशाल्लाह मैं अभी आज जाके बात करूंगा हफीज शेख से। मैं आपको ये सबको बता दूं कि ये मुल्क, हम जब पिछले 2 साल से जो हमारे माशी हालात हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क के घर की तरह होता है, घर मकरूज, सबसे ज़्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं। तो जब एक घर पे कर्जे चढ़ते हैं तो क्या करता है घर? हर घर में कभी ना कभी मुश्किल वक्त गुजरता है। तो जब कर्जे चढ़ते हैं तो घर अपने खर्चे कम करता है जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ती। तो जब खर्चे कम करता है तो तकलीफ होती है लोगों को। मैंने अपने ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 60 से 70% खर्चे कम किए हैं। हमने, फेडरल गवर्नमेंट ने 40 अरब अपनी फेडरल गवर्नमेंट में खर्चे कम किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने बैलेंस करना है, हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते। और मैं बड़े फख्र से आज कहता हूं कि जो 2 हमारे सबसे बड़े मसले थे, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो पैसा डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, ये 5वां महीना है कि वो 17 साल के बाद वो सरप्लस में चला गया। और दूसरा जो हमारी आमदनी और खर्चे अंदरूनी हैं, अगर हमें कर्जों की किस्तें ना अदा करनी पड़े तो उसमें भी हमने अपना बैलेंस कर लिया, यानी कि हम थोड़ा सरप्लस पे हैं। ये बहुत बड़ा 2 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में, ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कोई नहीं समझ रहा था कि 2 सालों में ये होगा। लेकिन जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूं थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंशाअल्लाह जिस तरह आगे हालात हमें नजर आ रहे हैं, हमारे मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सिर्फ हमने अपनी मैनेजमेंट गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है और ये मुल्क उठ जाएगा। और इंशाल्लाह हमारे पास इतना पैसा होगा कि पुलिस को ही नहीं, आपकी तनख्वाहें पंजाब नहीं, सारे पाकिस्तान में पुलिस की भी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अपने जो हमारे सारे सरकारी नौकर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तनख्वाहदार हैं, इंशाल्लाह सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे जैसे जैसे आमदनी हमारी बढ़ती जाती है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी को बिजली मजीद ₹1.52 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई, जिसमें नवंबर के लिए बिजली की कीमत में 95 पैसे फ़ी यूनिट और अक्टूबर के लिए भी बिजली 57 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त पर समाअत 30 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगी, ताहम इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन के इस्तीफ़े 31 दिसंबर तक स्पीकर तक पहुँच जाने चाहिए। इस्तीफ़े नहीं पहुँचते तो ये ड्रामेबाजी बंद की जाए। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपोजिशन ने 5th कानून साजी पर नैब कवानीन में तरमीम का मुतालबा किया। इस मुतालबे का मतलब NRO था। ये इकदाम नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में क्यों नहीं किए? आपने नैब में तरमीम नहीं की तो ये गफलत आपकी है, ये ज़ाती एजेंडा था जिस पर वो सौदा करना चाहते थे। बरमला कह रहा हूँ, नैब में बेहतरी की गुंजाइश है लेकिन सौदा नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इस्तीफ़ों के मामले पर अपोजिशन जमातें तकसीम हैं। पीपल्स पार्टी में बाइख्तियार कोई और है और दिखावे वाला कोई और। आज भी इनके फैसले आसिफ अली जरदारी करते हैं। कवानीन में तरमीम हो सकती हैं और कोई कानून हरफ आखिर नहीं हुआ करता, उसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद होते हैं और किए जा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं किए जा सकते हैं। सौदा नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि आप नैब का कानून तरमीम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालकर ये करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ।
कौमी असेंबली में मैंने उस मसवदे को चाक कर दिया और जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। अब बहुत से लोगों को नागवार गुजरी और बहुत से लोग उसकी वजह से मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बनाते रहे, सियासत में तनकीद होती है, सियासत में तनकीद सुननी पड़ती है, मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं। मेरी नीयत तब भी साफ थी, आज भी साफ है, नंबर 1। नंबर 2, बरमला कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं, और ये कह रहा हूं बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के और इमरान खान के जहन की अक्कासी करते हुए कह रहा हूं, नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, सौदा नहीं करेंगे। आप इस्तीफों की धमकी देना चाहते हैं, जरूर दे, लेकिन फिर कायम भी तो रहे ना। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया। ये हिचकिचाहट क्यों है, ये घबराहट क्यों है, ये रुकावट क्यों है? क़यादत को पहुंच जाएंगे। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए, और अगर 31 तारीख को, 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें कौम के साथ, ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। आप अगर इस्तीफा देना चाहते हैं, ये आपका फैसला है, हम तो चाहेंगे कि इस पर नजरसानी करें, क्योंकि आपकी जमातों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपके पीडीएम के अंदर। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ और फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। साबिक सदर ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे ना दिए जाएं। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे ना दिए जाएं। हम ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट के हक़ में भी नहीं। PDM मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से ज़ायद नशिस्तें हासिल कर सकती है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जरदारी के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया। नवाज शरीफ का कहना था कि PDM इस्तीफ़े दे दे तो सेनेट इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि इस मामले को PDM के सरबराही इजलास में हल करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मुताबिक पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुत्तफिक है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से उनकी सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि जब हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी तो शेरवानी पहनने की इतनी क्या जल्दी थी। मर्दान में अपोजिशन जमातों के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, इमरान खान ने कल खुद टीवी पर अपनी नालायकी का एतराफ़ करते हुए कहा, मुझे तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। अवाम को जवाब दो कि शेरवानी की इतनी क्या जल्दी थी। अवाम की ज़िंदगियों से खेल कर कहते हो हुकूमत चलानी नहीं आती। उन्होंने कहा, तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। कहता है कि मैं समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मर्दान आज ये सवाल करने में हक बजानिब है कि अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वजारत उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दर बदर है, तो तुम आज मर्दान की अवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अली हैदर गिलानी ने पंजाब असम्बली में मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद नाज़िम हुसैन शाह के इंतकाल पर ताज़ती करारदाद पेश की। ऐवान ने रूल्स मुअत्तल करके करारदाद पेश करने की इजाज़त दी। करारदाद पेश करते हुए सैयद अली हैदर गिलानी ने कहा कि ऐवान सैयद नाज़िम हुसैन शाह के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करता है। सियासत में उनकी खिदमात मुद्दतों तक याद रखी जाएंगी। पंजाब असम्बली ने सैयद अली हैदर गिलानी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। सर्द मौसम में मुल्तान की फिजा को गुल दाऊदी ने मुअत्तर कर दिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना नुमाइश गुल दाऊदी का एहतमाम किला कोहना कासिम बाग इब्न कासिम बाग पार्क में किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने किया।
इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब, सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, चेयरमैन पीएचए एजाज हुसैन जंजुआ, डायरेक्टर जनरल पीएचए आगा मोहम्मद अब्बास ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इवेंट है ये पीएचए के सालाना इवेंट में शामिल है। आज हमारा जो इसका गुल दाऊदी का इफ्तिताह किया वो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जाहिद ज़मान साहब ने किया, और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी पूरे मुल्तान को इतना खूबसूरत आपने बनाया है, और ख़ुसूसन इन कोरोना के दिनों में जो लोग जहनी दबाव में हैं और निकल कर इस गुले गुलजार की एक महफ़िल, हमने फूलों को महफ़िल सजाई है जिसको फूलों का शहर कह सकते हैं, पूरा गुलिस्तान कह सकते हैं। 20 कलर हैं, 20 मुख्तलिफ़ कलर हैं और 12,000 गमले रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुल्तान के शहरी आएँ, अपने बच्चों के साथ लेके आएँ, इस कोरोना की वबा से कि जिस दबाव में हैं आएँ और बच्चों को लेके आएँ और ख़ूबसूरत इस महफ़िल को देखें। ये मैं पीएचए की तरफ से जो है आवाम के लिए गिफ्ट है। दिसंबर की सर्द रुतों में ग्रीन इवेंट्स ग्रुप ने मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना के इश्तराक से शबे आतिश सजा दी। तकरीब में बॉन फायर खूबसूरत गज़लों से शुरकाए तकरीब खूब महजूज हुए। बाद अज़ां कवाली का दौर हुआ। नदीम कयूम और असगर अली ने इलाकाई ज़ुबान में गीत, उर्दू में गज़लें, कवाली गाकर हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अब्दुल बासित राव तकरीब का इफ्तिताह अल नाज़िर ट्रस्ट के बानी डॉक्टर महबूब ने किया। आसिफ शुजाबादी के रक्स ने शायकीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। इस मौका पर महफिल में मौजूद अफराद ने तकरीब के इनकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि टेंशन के इस दौर में ऐसी तकारीब किसी तोहफे से कम नहीं। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियाँ जावेद कुरैशी, जुनेद चौधरी, अब्दुल कयूम, कसवर राजपूत, जावेद इकबाल, मोहम्मद शाहिद, अजीम शियान, वसीम शहजाद, राव शफकत अली, मोहम्मद अजमल, नावेद, नवीद अकरम, अरसलान गोल्ड, राना काशिफ, राना बाकिर समेत मोअज़्ज़िज़ीन शरीक थे। आरिफाना कलाम और लाल शहबाज कलंदर का कलाम पेश करने पर शायकीन बेख्तियार धमाल डालने पर मजबूर हो गए। इस मौका पर उन्होंने तकरीब की सरपरस्ती करने पर चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ व एडिटर रोजनामा बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस का खसूसी शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ां मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मियाँ जावेद कुरैशी ने कहा, शब आतिश को सबने इंजॉय किया, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। उन्होंने कहा, मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना ने ग्रीन इवेंट ग्रुप के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम तरतीब दिया। आज का जो ये शब आतिश का प्रोग्राम रखा गया है, माशाल्लाह सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। डीएफए के दोस्त भी आए हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी आए हुए हैं, फुटबॉलर भी आए हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मक्स न्यूज़ व एडिटर रोजनामा बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस आवाम को मेयारी खबरियत के साथ साथ तफरीह भी फ्राहम करते हैं। हम इनके मशकूर हैं। उन्होंने मक्स न्यूज़ की नशरियात को 1 साल मुकम्मल होने और रोजनामा बदलता ज़माना के इजराक पर मुबारकबाद देते हुए इसे नेक शगुन करार दिया। महफिल में शरीक इरफान अहमद ने कहा कि ये एक यादगार तकरीब है, हम इसमें बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और आई एम वेरी थैंकफुल टू स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, डिसिप्लिन है, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अब्दुल बासित राव ने मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वैसे तो हर कोई ऐसी तकारीब के लिए बॉन फायर का नाम इस्तेमाल करता है, मगर हमने इसे शबे आतिश का नाम दिया ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का फ़रोग हो सके। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, मगर हम और बिलखसूस हमारी नई नस्ल टेक्नोलॉजी के इस दौर में उर्दू से काफ़ी दूर हो चुकी है, इसलिए हम फ़रोग उर्दू के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करवाते रहेंगे। शब आतिश का असल मकसद था कि एक तो उर्दू को प्रमोट किया जाए, वरना लोग करते हैं बोन फायर के नाम से करते हैं, लेकिन हमने शब आतिश, बोन फायर भी अपनी जगह रहा लेकिन शब भी रहा, आतिश भी रहा। इंशाल्लाह हम गाए बगाए कराते रहेंगे इस तरह के इवेंट्स, ऐसे हमारा हर साल होता है इस तरह का इवेंट। उन्होंने अपने प्रोग्राम में ताउन के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मक्स न्यूज़ और एडिटर रोजनामा बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सर्दियों की शिद्दत बढ़ते ही जहां ड्राई फ्रूट और सूप का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं पर हलवा जात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। खानेवाल में एक ऐसी दुकान भी मौजूद है जहां पर 16 इकसाम के हलवा जात तैयार किए जाते हैं।
اس حوالے سے دیکھتے ہیں شیخ قاسم کی رپورٹ۔ موسم سرما میں پاکستان کے مختلف مقامات میں جو سوغات ہر گھر میں سب کو پسند ہوتی ہے وہ گاجر کا حلوہ ہے۔ انتہائی لذیذ ہونے کے باعث یہ لگ بھگ موسم سرما کی روایت بن چکی ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی خانے وال کے شہریوں نے حلوے کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں نے گاجر کا حلوہ کھایا بھی اور دوستوں کے لیے تحفے تحائف کے لیے خریدا بھی۔ ویسے تو لوگ گاجر کے حلوے کو میٹھا ہونے کے باعث اسے صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، مگر سردیوں میں خود کو صحت مند رکھنے کے لیے اس سوغات کو کھانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ حلوہ لینے کے لیے میں آیا ہوں اور ارشد سویٹ گرمیوں میں اچھی سوغات ہے۔ ان کے یہاں تقریباً 16 قسم کا حلوہ جو ہے وہ انہوں نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا ہے۔ جس طرح دوسرے شہروں میں مختلف چیزوں کے حلوہ بنائے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی تقریباً 16 قسم کے حلوہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا ٹیسٹ ہے اور سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے۔ یہاں کا حلوہ بہت مشہور ہے اور بہت سے لوگ فرمائش کرتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو فیملیز آرمی سے ریلیٹڈ ہوں میں، اور بہت سی فیملی ہماری ٹرانسفر ہوتی ہے اور بہت فرمائش آتی ہے کہ آپ پلیز ارشد کا حلوہ، اخروٹی حلوہ ہمیں بھیج دیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی۔ حلوے ہمارے پاس 16 قسم کے ہوتے ہیں، مختلف فلیور میں ہوتے ہیں۔ اخروٹ کا ہوتا ہے، انجیر کا ہوتا ہے، بادام کا ہوتا ہے، کھجور کا ہوتا ہے، ادرک کا ہوتا ہے، ایلو ویرا کا ہوتا ہے، ہلدی کا ہوتا ہے اور بے شمار حلوے ہمارے پاس۔ الحمدللہ کوئی 30 سال سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ماہرین طب کا کہنا تھا کہ اس سے وٹامن اے کا حصول بھی حاصل کیا جاتا ہے اور گاجر کے حلوے سے کیلشیم کا حصول بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اکثر افراد دودھ کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ سوغات کیلشیم سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ جلد کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گاجر بیٹا کیروٹین سے بھرپور سبزی ہے جو کہ سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شیخ قاسم، مکس نیوز، خانے وال۔ اچ شریف میں موٹر وے M5 پر تیز رفتار بس کی ٹکر سے سامان سے لوڈ ڈالا الٹ گیا، جس کے باعث ڈالے میں سوار ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق شخص اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ لیا چوک اعظم میں زمین کے تنازع پر جھگڑا قانون بااثر افراد کے سامنے بے بس ہو گیا۔ 3 روز بعد بھی مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ چک نمبر 278 کے امین کا کہنا ہے ملزم ذوالفقار اور اس کے ساتھیوں نے اس پر اور اس کی بیوی پر تشدد کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ہم پولیس اور ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، پولیس درخواست کے باوجود کارروائی نہیں کر رہی۔ ملزمان درخواست واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ متاثرہ شخص نے حکومت سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لودھرا میں جنرل سیکرٹری تحریک انصاف رانا ارسلان خان نے صحافیوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ نیشنل پریس کلب رجسٹرڈ لودھرا اور لودھرا پریس کلب کے ممبران نے شرکت کی، رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی اوان۔ معروف سیاسی سماجی شخصیت و ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف لودھرا رانا ارسلان خان نے لودھرا کے ورکنگ صحافیوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں لودھرا کے ورکنگ صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانا ارسلان خان نے کہا کہ صحافت مقدس پیشہ ہے اور جو صحافی عوام کے مسائل اجاگر کرتے ہیں وہ کلمی جہاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل پریس کلب رجسٹرڈ لودھرا اور لودھرا پریس کلب کے تمام ممبران کی میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ دونوں پریس کلب میرے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور دونوں پریس کلبوں کی طرف سے مجھے بھرپور کوریج مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے موسن اور لیڈر جہانگیر خان ترین کے ساتھ مل کر دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ رانا ارسلان خان نے کہا کہ میری اہلیہ میڈم کائنات رضا چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ دکھی انسانیت کی ہر موڑ پر خدمت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لودھرا کے عوام کی دن رات خدمت کرنی ہے اور لودھرا شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ رانا ارسلان خان نے کہا کہ مستحق لوگوں کی خدمت کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے اور مستحق لوگوں کی ہر موڑ پر خدمت کی جائے گی۔ عشائیہ میں چودھری عبدالقدیر، رانا نعمان، سید باغ علی نقوی، رانا فیض ارشاد اور PTI کے کارکنان موجود تھے۔ عمران علی آوان، نمائندہ مکس نیوز، لودھرا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.